Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about glycolysis and Krebs cycle from chapter 4 Bioenergetics 4 class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the mechanism of cellular respiration, in which we have to discuss their steps: glycolysis, oxidation of pyruvic acid, and Krebs cycle. Now first we discuss about the glycolysis. Now the word glycolysis is derived from two words, that is glyco, which means glucose, and lysis means to break down or splitting. Now it can be defined as the initial breakdown of a glucose molecule into two molecules of pyruvic acid. This is known as glycolysis. In this process, the glucose molecule break up into two molecules of pyruvic acid. It means that the 6 carbon compound, that is glucose, break down into two molecules of the 3 carbon compound, that is pyruvic acid. And this process takes place in the cytosol, that is the cytoplasm, so it does not require any kind of oxygen. So this process takes place in the presence or absence of oxygen. They do not need any oxygen. So the further production of the synthesis of the ATP, which requires the oxygen, that's why they takes place in mitochondria, while the glycolysis is the process which only takes place in cytoplasm, and it can be do this process in anaerobic condition as well as aerobic condition. They do not require oxygen. So glycolysis takes place in aerobic as well as anaerobic condition. Now further we discuss the process of glycolysis. That glycolysis completes in two phases. First phase is preparatory phase and the other phase is oxidative phase. The oxidative phase is also known as the payoff phase. Why it is called payoff phase? Because in this phase they gives energy which are utilized by the first step. जो पहले स्टेप में यूटिलाइज हो रही है एनर्जी, सेकंड स्टेप में जो है ये जो है वो एनर्जी जो है बढ़ाती है, एनर्जी हमें देती है. दैट्स वाई इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं या पे ऑफ फेज भी कहेंगे, और पहली फेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं. Now first we discuss about the preparatory phase and then we have to discuss about the oxidative phase, and this process is discussed with the help of diagram. Now the first step, that is the conversion of glucose into glucose 6-phosphate, that with the help of the enzyme, that is the hexokinase enzyme, and this hexokinase enzyme do work. This requires the energy. The glucose molecule is converted into a glucose 6-phosphate. Addition of the phosphate, that phosphate is come from the ATP, and ATP molecules provide energy and it convert into ADP. So it utilize the energy, glucose molecule utilize the energy and convert it into glucose 6-phosphate with the help of the hexokinase enzyme. And also you have familiar the structure of the glucose. This is the structure of the glucose, and when they convert it with the help of the hexokinase enzyme into a glucose 6-phosphate, that is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, and that is the carbon 6. In carbon 6 the phosphate group has been attached and the glucose molecule is converted into a glucose 6-phosphate. Now that is the first step, and in the second step the glucose 6-phosphate is converted into the fructose 6-phosphate. Both molecules is the isomer because they have the similar molecular formula but different structure formula. So isomerase enzyme, which isomerase enzyme? Phosphoglucosidase
isomerase enzymes, they convert the glucose 6-phosphate into a fructose 6-phosphate. In this you have know that the glucose 6-phosphate, this is the structure of the glucose 6-phosphate, and with the help of the phosphoglucoisomerase enzyme it converted into a fructose 6-phosphate, and this is the fructose C1, C2, C3, 4, 5 and 6. At position 6 the phosphate group is attached and it is converted into a fructose 6-phosphate, and the enzyme work on it, that is the phosphoglucose isomerase. This is the second step in glycolysis, that is the preparatory phase of the glycolysis. Now the fructose 6-phosphate is converted into a fructose 1,6-bisphosphate. Now the addition of another phosphate group in the fructose 6-phosphate, which is required the energy, and this energy is comes from the ATP, and the ATP is converted into ADP and release energy, and this energy is used by the fructose 6-phosphate. With the help of the phosphofructose kinase enzyme it convert into a fructose 1,6-bisphosphate. और आप ये देख रहे हैं कि ये फ्रुक्टोज का फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 कार्बन शुगर होती है, और ये आप देख रहे हैं कि इधर इसके कार्बन 1 और कार्बन 6 दोनों पे आपके पास क्या मौजूद है, 6 आपके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, और इसको ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है ये किसकी मदद से अटैच हुआ है, ATP पे जो कन्वर्ट हुआ है और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से ये फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate बना है। अब क्या होता है, फिर ये आपका कौन सा स्टेप था, फ्रुक्टोज 1 कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-phosphate, यह आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 कंपाउंड्स। अब आपको पता है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, अब ये 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। आप जरा रिकॉर्ड करें ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और अब ये ब्रेक डाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ द एल्डोलेज एंजाइम एंड गिव राइजेस इनटू 2 कंपाउंड्स, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द गल्सल्डिहाइड 3-phosphate। तो एक हमारा एल्डोलेज एंजाइम की मदद से क्या हुआ, चौथा स्टेप क्या है, कन्वर्जन हुई फ्रुक्टोज 1,6-phosphate की इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड गल्सल्डिहाइड 3-phosphate में। तो अब आपके पास ये कितने कार्बन कंपाउंड बन गए, 3 कार्बन कंपाउंड, 2 बनेंगे, एक ये 3 कार्बन कंपाउंड है जिसे आप गल्सल्डिहाइड 3-phosphate कहते हैं, और ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसे आप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहेंगे। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है 1 2 3, एंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है 1 2 3। पांचवा स्टेप क्या होता है कि बोथ दी जो आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू गल्सल्डिहाइड 3-phosphate ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या है कि आपके पास ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम है विच एक्ट ऑन द वो गल्सल्डिहाइड 3-phosphate को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को किस में, गल्सल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम जो है वो जो रिएक्शन को जो प्रोसीड करते हैं वो गल्सल्डिहाइड 3-phosphate से जो है वो हम रिएक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है दे कन्वर्ट द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इनटू गल्सल्डिहाइड 3-phosphate। सो 2 molecules ऑफ दी गल्सल्डिहाइड 3-phosphate जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। जब आपके पास गल्सल्डिहाइड, तो ये पहले 5 स्टेप्स, ये 5वां स्टेप जिसके अंदर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को गल्सल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके पास कितने आ गए, 2 molecules ऑफ दी, इधर आपने देखें क्या लिखा हुआ है, 2 molecules लिखे हुए हैं, तो 2 molecules बन के किसके, गल्सल्डिहाइड 3-phosphate के बन जाते हैं। देन द प्रिपरेटरी फेज ऑफ दी ग्लाइकोलिसिस इज कम्प्लीटेड। तो आपकी जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जो प्रिपरेटरी फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो पेओ फेज की तरफ इंटर हो जाता है। अब क्या होता है पेओ फेज में, क्या होता है कि गल्सल्डिहाइड 3-phosphate के जो 2 molecules हैं, गल्सल्डिहाइड
3-फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। वो दोनों मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लिसरेट 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। तो आपके पास जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ग्लिसरडिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो बेसिकली क्या करेगा? इसको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। और बेसिकली आपको पता है डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ये बेसिकली क्या है? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको रिमूव कर देगा। और जब यह हाइड्रोजन को जो रिमूव करेगा तो फर्दर क्या होगा? इसके साथ आप ये देख रहे हैं क्या आ जाएगी? POH जो है वो क्या होगा? अटैच्ड हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, आप ये देख रहे हैं जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आप जब हाइड्रोजन रिमूव होगी, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने जब रिमूव करेगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा और आपके पास क्या हो जाएगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। और ये इसकी हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब रिलीज होता है तो आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी जो रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द NAD एंड NAD इज जो NAD के साथ क्या होगा? फॉस्फेट आयन जो है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जो आपके पास फॉस्फेट मौजूद है जो वो NAD के साथ ऐड होगा और NADH हमें मिल जाएगा। तो इस स्टेप में सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल जाएगा, NADH हमें मिल जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं कि इसमें हमें क्या है जो एनर्जी ऊपर यहाँ पर यूटिलाइज हुई थी वो एनर्जी हमें यहाँ पे क्या है? दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले हमें हाईली एनर्जी कंपाउंड मिलेगा, NADH मिलेगा, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने हाइड्रोजन को जब रिमूव किया, दिस इज बेसिकली अ प्रोटॉन एंड दे हैव द एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द NADH that is a coenzyme which is utilize this energy to reduce itself and become a NADH। ये रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म कौन सी आपकी बन जाती है? NADH। और जो आप आगे जो है वो ATP में कन्वर्ट होती है। तो इस वजह से जो है ये क्या हो जाएगा? आपके पास 2 NADH आ जाएंगे। फिर फर्दर मोर आपने ये बात याद रखनी है कि ये जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़ाहिर बात है अब फर्दर ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके बना देगा? फॉस्फोग्लिसरेट के बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है तो फिर दोबारा क्या हो रहा है कि जो ATP है ना वो आपके पास ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ATP जो मौजूद हैं वो कि 2 ADP हैं वो ATP में बनेंगे, तो ये भी आपके पास एनर्जी बन जाएगी, मतलब एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसमें जो ये जो 2 ATP बन रहे हैं ये किस लेवल पे बने? सबस्ट्रेट लेवल कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हाईली एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप। फॉस्फो रिलेशनशिप आप पहले अपने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब ADP में जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर जब फॉस्फेट आयन ऐड होता है और उसकी वजह से जो एनर्जी मॉलिक्यूल ATP बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फो रिलेशनशिप। और हमने जो ये लाइट रिएक्शन में जब पढ़ा था तो हमने देखा था ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया था? फोटो फॉस्फो रिलेशनशिप कहा था उधर। अब इधर क्या कहते हैं? तो लाइट की मौजूदगी नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन की मौजूदगी में क्या हो रहा है कि फॉस्फेट आयन जो है वो ऐड हो रहा है और जिसकी मदद से क्या है हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर एज अ फॉस्फो रिलेशनशिप। और ये कौन से लेवल पर फॉस्फो रिलेशनशिप हो रही है कि ये आपके पास हाईली एनर्जी बॉन्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी रीज़न आपने बतानी होगी तो आप बताएंगे कि जो आपके पास जो है सबस्ट्रेट लेवल पे ये हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज हाईली एनर्जी फॉस्फेट आयन इज एडिड इनटू इट, दैट्स व्हाई दिस ATP इज कंसीडर एज अ सबस्ट्रेट लेवल ATP। तो ये जो एडिशन हो रही है या जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है, ये वाला जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप। और इसकी वजह से भी आपके पास क्या आएगा?
आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल जो है जनरेट हो जाएगा और 2 ATP आ जाएंगे। फर्दर में और देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास होता है जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसके भी जारी बात है, ये 2 मॉलिक्यूल्स बने, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब अब पहले वो 3 पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली किसकी मदद से हो रही है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की मदद से हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास जब अगला स्टेप क्या होता है, जब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाते हैं तो हमारे पास फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैसे बनेगा कि इसमें से हम वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इनोलेज एंजाइम की मदद से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एट लास्ट क्या होता है कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम क्या करता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। और इधर भी क्या होती है कि जो आपके पास जो हाईली एनर्जी बॉन्ड है फॉस्फेट आयन, जो फॉस्फेट मौजूद है वो ऐड हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ और हमारे पास हाईली एनर्जी बॉन्ड बना देता है, एटीपी बना देता है, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो एडिशन हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो रिलेशनशिप। और क्योंकि हाई एनर्जी बॉन्ड बन रहा है और ये जो फॉस्फेट आयन है वो ऐड हो रहा है कौन से लेवल पे, डायरेक्टली ये एटीपी बन रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप। तो आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप इधर भी हो रही है और इधर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप हो रही है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द या एडिशन ऑफ द फॉस्फेट आयन, जो हाईली एनर्जी बॉन्ड जो है फॉस्फेट आयन ऐड होता है और उसकी वजह से बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप। और एंड में एट लास्ट आपके पास क्या बन जाते हैं, पायरुवेट बन जाते हैं और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी पायरुवेट में। और ये टेक्स प्लेस होते हैं 2 स्टेप्स में, एक को हम क्या कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसके अंदर वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे जिसमें आपके पास 2 एटीपी क्या है यूटिलाइज हो रहे हैं। और इसके बरक्स जब वो ऑक्सीडेटिव फेज या पेओ फेज में जाता है तो वो आपके पास NADH के जो है वो मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके पास, एटीपी की प्रोडक्शन आएगी आपके पास, और जिसकी मदद से क्या होगा ये जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी पायरुवेट में। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अब फर्दर ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि द जनरेशन ऑफ द एटीपी इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप। क्योंकि आपको पहले भी बताया कि द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू एटीपी। तैयारी बात है कि आपके पास जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, जो फॉस्फेट आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या आपके पास जो ऐड हो रहा है वो बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट जो एटीपी है उसके में डायरेक्टली ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से वो एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है, डायरेक्टली आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन आ रही है, जिसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो रिलेशनशिप कहेंगे। अब हम इसकी जो इनपुट में कि हमने कितनी एनर्जी यूटिलाइज जो है प्रोवाइड करी और इससे हमें कितनी जो है एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी, इसको हम देखते हैं। अगर आप इनपुट की बात करें तो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया और 2 जो है पैरोविक एसिड्स हमारे पास है, C3 कंपाउंड्स आए। 2 NAD जो थे वो आपके पास किस में बने, 2 NADH में। तो आपके पास 4 एटीपी की प्रोडक्शन है, जिसमें जो है फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन ऐड हुआ था सबस्ट्रेट लेवल पे और 4 एटीपी बने, और जिसमें से आपने जो है जो यूज्ड किए, जो यूज्ड आपने प्रिपरेटरी फेज में यूज़ किए वो 2 एटीपी आपने यूज़ किए और 4 एटीपी जो है वो आपका ऑक्सीडेटिव फेज में बने हैं। अब फर्दर में हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें क्या हुआ कि 2 पायरुविक एसिड गए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड हुए जो है वो प्रिपरेटरी फेज में, और 4 एटीपी जो है बने थे आपके पास ऑक्सीडेटिव फेज में। लेकिन जो नेट गेन आपके पास आया वो कितना आएगा, 2 एटीपी। नेट गेन 2 एटीपी क्यों है, बिकॉज -2 करेंगे 4 एटीपी में से तो हमारे पास जो नेट आएगा, नेट गेन आएगा वो कितनी आएगी,
टू ATP आएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस का था कि कितनी हमारे पास मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और कितनी हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड या लिंक्ड रिएक्शन। जो अब आपके पास जब पायरुविक एसिड बन जाता है, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल बट दे फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड and this carbon compound react with the acetyl CoA this or which is then this compound enters into the Krebs cycle। क्या पायरुविक एसिड जो है वो जो ग्लाइकोलिसिस में बना है वो इंटर्स हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हुआ तो पायरुविक एसिड डज नॉट स्टार्ट द Krebs साइकिल डायरेक्टली, वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि क्या होगा कि पायरुवेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड produce a 2 carbon molecule that is a acetyl group, and this acetyl group attached with the coenzyme A, that is then they become acetyl CoA, and this acetyl CoA reacts या starts या beginnings the Krebs cycle। तो अब हम जरा ये देखते हैं, इसको डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है। पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है वो इन क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये कि एनर्जी जो है वो NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर 2 पायरुवेट है, अपने इधर आप पायरुवेट तो एक लिए मॉलिक्यूल शो हो रहा है ना, तो आपके पास बनते कितने, 2 पायरुवेट बनते हैं, तो इसका मतलब है 2 NADH बनेंगे। और फर्दरमोर जैसे ही ये एसिटाइल को ए के साथ जब ये ऑक्सीडेशन होती है 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, साथ कोई एंजाइम के साथ क्या करता है, बाइंड कर लेता है, तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर आता है इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल को ए बोलते हैं। और दिस एसिटाइल को ए इज रिस्पॉन्सिबल टू एंटर इनटू द Krebs साइकिल। तो अब हाँ ये और इस रिएक्शन को जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है इसको हम लिंक्ड रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके अंदर आपके पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसके बाद जो फर्दर मोर है, इसके बाद जो है आपके पास Krebs साइकिल स्टार्ट होगी। अब Krebs साइकिल जो थी वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी Krebs साइंटिस्ट ने, तो जिसकी बिना पर इसका जो नाम है वो हमने जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसे हम कहते हैं Krebs साइकिल। Krebs साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल को ए जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन एटम जो है इसे रिमूव की जाती है, रिमूव फ्रॉम द कार्बन, जो कार्बन एटम जो कार्बन कंपाउंड है उसे हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है। और जो भी इसका हाइड्रोजन आपको पता है वो प्रोटॉन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद एनर्जी मॉलिक्यूल है, और जो ये हाइड्रोजन है दे आर यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस द NADH एंड FADH इनटू द NADH2 एंड FADH2, जो इसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, और वो जो आपके पास NADH और FADH जो एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, NADH2 में और FADH2 में। अब फर्दर हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास क्या बनती है, एसिटाइल को ए। जब ये एसिटाइल को ए पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये आपने बात याद रखनी है। सबसे पहला मॉलिक्यूल या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ द Krebs साइकिल इज कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। ये जिस मॉलिक्यूल से स्टार्ट और जिस मॉलिक्यूल पर आकर ख़त्म हो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो Krebs साइकिल का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट है। एसिटाइल को ए इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो कन्वर्टेज जो है एंजाइम की मदद से, और ये जो सिंथेसिस हो रही है जो ये आप ऑक्सैलो एसीटेट और जब यहाँ पर बाइंड करते हैं जिसकी मदद से क्या हो रहा है, आपके पास सिट्रेट बन रहा है, उसके लिए जो एंजाइम यूटिलाइज होता है उसे बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूटिलाइज होता है। इसके बाद ये फर्दरमोर क्या होता है, जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरमेसिस एकोनिटेज में विद द हेल्प ऑफ द एकोनिटेज एंजाइम। देन फर्दरमोर क्या होता है कि इसमें से वाटर की एडिशन होती है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। तो आपने ये बात याद रखने का, सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है जो आइसोमर बन जाता है, पहले वो बनता है सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो अनस्टेबल है, जिसे वाटर को रिमूव करने से क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस एकोनिटेज में, और दोबारा वाटर इसमें जब हम सिस एकोनिटेज में ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। और जब ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फर्दरमोर ये कि जब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी,
जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करेगा, देन दे कन्वर्टेड इनटू अ 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज द अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो क्या होगा कि जब आपके पास आइसोसिट्रेट बन जाता है तो आइसोसिट्रेट की क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेशन होती है। कि इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, जो प्रोटॉन है, जो जब वो रिलीज होगा तो जिसकी वजह से 6 कार्बन वाला कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसको आप अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहेंगे। और आपको पता है जब प्रोटॉन रिलीज होगा दिस, और इसकी एनर्जी कौन यूटिलाइज करेगा, NAD इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और विच कन्वर्टेड इनटू NADH, और वो जो है रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, NADH में चला जाएगा। इसी तरह जब अल्फा, अब आपके पास फिर दोबारा क्या हो रहा है, कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, वो अल्फा कीटो जो है आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट है उस पर एक्ट करेगा, उसकी डिहाइड्रोजिनेशन है। जारी बात है, आपको फिर दोबारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, दैट्स मीन कि ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड में। और जैसे ही ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसे हम जब ये कन्वर्ट होगा, जिसे हम बोल रहे हैं सक्सिनाइल CoA, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होता है, आपके पास जो NAD है, NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, NADH में, और CoA इसके साथ अटैच हो रहा है, तो सारी बात है, दैट्स व्हाई दे बिकम सक्सिनाइल CoA। तो आपने यहाँ पे भी ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा उधर साथ क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है और उसकी एनर्जी जो है वो NADH जो है वो इस्तेमाल करके अपने आप को NAD इस्तेमाल करके अपने आप को NADH में रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और साथ साथ एक एक कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से पहले ये क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था, तो फिर 5 कार्बन कंपाउंड में चला गया, 5 कार्बन कंपाउंड जो था वो जो है 4 कार्बन कंपाउंड में चला गया, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सक्सिनाइल CoA। फर्दर जो है वो आपके पास सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज एंजाइम आएगा। जब आपके पास ये एंजाइम आता है तो वो क्या करता है, जो आपके पास GTP है वो GTP को क्या करेगा, GTP जो है ना, आपने पास याद रखने, वो GDP गवर्निंग डाइफॉस्फेट को गवर्निंग ट्राइफॉस्फेट में जब कन्वर्ट करेगा तो उसकी मदद से क्या होता है, आपके पास ATP मॉलिक्यूल विल जनरेट द 1 ATP मॉलिक्यूल। जब वो कन्वर्ट होगा जो है, जब GTP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इस ये मॉलिक्यूल बनेगा तो उधर से इसका मतलब क्या है कि आपका ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आपका डायरेक्टली ATP बनता है तो वो कौन सा लेवल होता है, सबस्ट्रेट लेवल होता है। और जब आपके पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP, तो इसका मतलब है दिस प्रोसेस कॉल्ड द फॉस्फोरिलेशनशिप। तो यहाँ पर जब आपके पास GTP बनता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप। ये बात आपने याद रखनी है, ये की पॉइंट है कि आपको समझ आनी चाहिए कि जहाँ पे भी डायरेक्टली जब ATP की सिंथेसिस हो रही है और डायरेक्टली फॉस्फेट एंड जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो बन रहा है, दे आर और ATP बन रहा है, तो वहाँ पे कौन सा लेवल आ जाता है, सबस्ट्रेट लेवल। आपके पास क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे भी ये लफ्ज आ जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ। तो दैट्स मीन दिस लेवल इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप। फर्दर हम देखते हैं कि ये जब सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज है वो सक्सिनाइल CoA को किस में कन्वर्ट कर देगा, सक्सिनेट में। ये देखें ये 4 कार्बन कंपाउंड है। और फर्दर मोर जो है जब ये आगे कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में विद द हेल्प ऑफ दी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, देन दे आर, यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास देखें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो उसके मतलब है प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन जैसे रिलीज होगा वो FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा और उससे हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूमेरेट। फर्दर मोर क्या होता है, फ्यूमेरेट जब बनेगा तो फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से और वाटर की एडिशन की मदद से क्या होगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू मैलेट। और जब ये मैलेट बन जाएगा तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से क्या होगा
कि फर्दर मोर जो है हाइड्रोजन रिलीज की जाएगी, और जब इसकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन जब रिलीज हो रहा है तो दे कन्वर्ट द एनर्जी मॉलिक्यूल इनटू अ रिड्यूस फॉर्म दैट इज NADH। तो क्या होगा, इसके प्रोटॉन को इस्तेमाल किया जाएगा NADH में, और क्या होगा आपके पास NADH बन जाएगा। तो आपने भाई याद रखनी है कि आपके पास शुरू में जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में जाता है तो अल्फा कीटो को हम कहलाते हैं। जब ये अल्फा कीटो जो है 4 कार्बन कंपाउंड में जाएगा तो हम उसे फर्स्ट जो बनेगा उसे हम सक्सिनाल को सक्सिनेट, और ये फर्दर मोर जितने भी आपके पास बनेंगे क्या है आपके पास जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। और फाइनली जो है वो क्या बनता है, मैलेट आता है, जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है कि जो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जा रहा है। जब हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके NADH बनाई जाएगी, रिड्यूस फॉर्म बनाई जाएगी, ताकि जो है ये फर्दर इससे हम एनर्जी हासिल कर सकें। ये एनर्जी कंपाउंड है। और जब ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है वो मैलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ पे आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है ऑक्सैलो एसीटेट ही से साइकिल स्टार्ट हुई है, और ऑक्सैलो एसीटेट ही में आके क्या ये स्टॉप हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंपाउंड क्या आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, कि जिधर से साइकिल स्टार्ट हो और उधर वो आके खत्म हो, दैट्स कंपाउंड इज कॉल्ड द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। और इस तरह ये आपकी साइकिल जो होती है यहाँ फिर दोबारा जब ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है फिर दोबारा वो कोएंजाइम एसिटाइल कोई के साथ रिएक्ट करेगा और ये साइकिल क्या हो जाएगी, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह ये आपकी साइकिल चलती जाती है और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं। और इधर जो सबस्ट्रेट लेवल, ये बात भी आपने याद रखनी है, अगर पूछ ले पेपर में आ जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोर रिलेशनशिप किधर हो रही है, तो आपने ये बात याद रखनी है जब सक्सिनाल को ए से सक्सिनेट पे जब कन्वर्ट करते हैं तो जो GTP मॉलिक्यूल बनता है इट विल जनरेट द ATP। तो जहाँ पर भी डायरेक्ट ATP प्रोडक्शन हो रही होती है इसका मतलब है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोर रिलेशनशिप उधर हो रही है। तो ये तो था आपका क्रेब्स साइकिल के बारे में कि क्रेब्स साइकिल आपकी कैसे स्टार्ट होती है, और इसमें जो है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाते हैं। और इसमें हमें नेट प्रॉफिट क्या होता है कि आप ये देखें 1 2 3 NADH का मतलब है कि देखा आपके पास परवेट ये एक साइकिल चली ना, एक परवेट से एक साइकिल चली है तो परवेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। हमने ये बात ये भी आपने की पॉइंट याद रखना है, हम जब साइकिल बनाते हैं तो ये जो शो कर रहे होते हैं तो ये हम परवेट से एक साइकिल शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो टेक्स प्लेस हो रही थी वो 2 परवेट के मॉलिक्यूल है। तो 2 परवेट के मॉलिक्यूल्स आपको जैसे ही होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे ना। तो 2 NADH ये हो गए, 2 NADH ये, 2 NADH ये हो गए और 2 NADH ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6 NADH। तो ये तो शो तो आपको एक परवेट मॉलिक्यूल से कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या इधर उन्होंने जो है वो सिर्फ FAD को FADH2 दिखाया, क्योंकि परवेट के हमारे पास वैसे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 होते हैं। तो जरूर बात है, तो टोटल कितने हो गए 2 FADH हो गए, और इधर एक ATP जनरेट हो रही है क्योंकि एक परवेट से एक जो ये एक परवेट से एक क्रेब्स साइकिल चली, दूसरे परवेट से दूसरी क्रेब्स साइकिल चली, तो टोटल हमारे पास जो ATP आई वो कितनी आई, 2 ATP आई। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो हम जो ये साइकिल को जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जो हमें जो डायग्राम हमारी बुक में या टेक्स्ट में मौजूद है उसके अंदर जो आपको ये साइकिल शो कराई जाती है उसके अंदर क्या है वो एक पैरोवेट मॉलिक्यूल से आपको एक साइकिल जो है वो शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके हम ग्लूकोज की बात करें ना, कि हमने तो ग्लूकोज की बात करनी है ना कि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल बन रहे पैरोवेट के, 2 मॉलिक्यूल बनते पैरोवेट के। तो इसका मतलब है हमें 2 मोल एक ग्लूकोज से 2 पैरोवेट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमने ये बात याद रखनी है कि एक इससे हमारे पास क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस में अभी आपने पढ़ा है कि 2 पैरोवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एक पैरोवेट से क्या 3 NADH, एक FAD और एक ATP आता है। तो दूसरे वाले से भी क्या होगा 3 NADH, एक FAD और एक ATP आएगा। तो जो पर ग्लूकोज जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एनर्जी आती है वो कितनी आएगी 6 NADH, 2 FADH2
और 2 एटीपी मॉलिक्यूल आएगी, और जिससे हम आगे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट करके देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितनी एनर्जी बनेगी। तो ये तो था आपके पास ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में। फर्दर जो है अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके पास ये NADH है ये कितने आपको मॉलिक्यूल्स ATP के देगा ग्लाइकोलिसिस के में, और इसी तरह जो है वो ऑक्सीडेटिव जो ये ऑक्सीडेशन और पायरुवेट में उसमें भी कैलकुलेट करेंगे कि उसमें NADH के मॉलिक्यूल से हमें कितनी ATP मिली, एंड फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हुई है इससे हमें कितनी जो है वो ATP प्रोडक्शन हुई है। और इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये तो था आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में। नेक्स्ट टाइम जो है अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।